if B has the contract with C and A promises B that, okay, if you fulfill your contract with C, then I'm going to give you a reward, then they obtain a benefit to which they previously had no right. And therefore, B assumes new obligations and then he fulfills the contract with C in order to get what A has offered him. Now, this won't be considered as no consideration. It will be considered as a consideration. Despite the fact this is an existing duty on him, still this was not open for him before, and he was not fulfilling the contract with C. He was not doing it. He was not willing to do it. And as soon as he promised a reward, B का दिल बदल गया और उसने कहा कि ठीक है मैं fulfill कर देता हूँ contract. So that is what was going on. Okay. Next, waiver of existing rights. Waiver of existing rights. If X owes Y pound 100, but Y agrees to accept a lesser sum, say pound 80, in full settlement of Y's claim, there is a promise by Y to waive their entitlement to the balance of pound 20. The promise, like any other, should be supported by consideration. Yani X is now saying that, okay, fine. No, Y is saying that it's okay, fine. I will not mind if you just pay me 80 pounds rather than 100 pounds. It's okay. But they have waived their entitlement to the balance. But the promise, like any other, should be supported by consideration. And the consideration could be that you have to pay me today or you have to pay me now. Then I would waive off 20 pounds. Like that. ये यूजुअली पता है किस में होता है, किस सिनेरियो में होता है, जहां पर ए और बी, फॉर से ए इज ओइंग 100 पाउंड्स टू बी एंड बी को ये लग रहा होता है कि यार ये ए जो है ना ये बैड डेट कर देगा, ये भाग जाएगा, ये टोपी कर रहा है, ये मुझे पैसे नहीं लौटाएगा। तो बी इसको लालच देने के लिए, ये ताकि 100 पाउंड डूब ना जाए, वो उसको लालच देने के लिए बोलते हैं देखो ये तुम अगर मुझे आज के दिन में ही दे दोगे ना तो मैं तो वो 20 पाउंड जो है वो वेव ऑफ कर दूंगा, तो तुम आज ही मुझे दे दो 80 पाउंड और 20 पाउंड वेव ऑफ। तो ए बोलता है अच्छा, फिर वो सोच में पड़ता है, फिर वो डिसाइड करता है उस हिसाब से कि मैं क्या करूँ। है, तो ये जो वेव ऑफ कर रहा है 20 पाउंड्स, वो किसके एवज में, तो कंसिडरेशन क्या है कि भाई बैड डेट होने से बच जाएगा, पूरे 100 पाउंड्स डूबने से बच जाएंगे। दैट्स द कंसिडरेशन। ओके नेक्स्ट, एक्सेप्शंस, ऑल्टरनेटिव कंसिडरेशन पढ़िए। If X offers and Y accept anything to which Y is not already entitled, the extra thing is sufficient consideration for the waiver goods instead of cash early payment. अभी हमने पढ़ा ना अर्ली पेमेंट जल्दी आज के आज दे दो, तो ये भी हो सकता है और गुड्स भी हो सकते हैं कि ठीक है तो मुझे 20 पाउंड्स का अपना कोई सामान दे दो, बाकी 80 पाउंड्स कैश दे दो, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, Bargain between the creditors. If X arranges with the creditor that they will each accept part payment in full entitlement, that is bargain between the creditors. X has given no consideration, but he can hold the creditor individually to the agreed term. क्या कह रहे हैं? ये वो जो ना हाफ ऑफ करके भी आप दे सकते हैं ना, उधार जो भी है वापस करने वाला। एग्जैक्टली, पार्ट पेमेंट जब वो पार्ट पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, so they are going to actually bargain between the creditors that हाँ भाई मतलब मेरे 100 हैं तुम्हारे 200 हैं, तुम ऐसा करो 50-50 का इंस्टॉलमेंट बना लो, फला फला कर लेते हैं, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो बार्गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, एक्स हैज गिवन नो कंसिडरेशन बट ही कैन होल्ड द क्रेडिटर्स इंडिविजुअली टू द अग्रीड टर्म्स। नेक्स्ट, थर्ड पार्टी पार्ट पेमेंट, third party offers part payment and Y agrees to release X from Y's claim to the balance. Y has received consideration from Z against whom they had no previous claim. अब वही बात हो गई, ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी के 100 पाउंड्स देने हैं और वो नहीं चुका पा रहा, कितना टाइम हो गया, तो सी जो है वो ए का दोस्त होता है, सी इसके बिहाफ पे बी को पेमेंट कर देता है और बोलता है तुम इसका हिसाब चुकता करो, क्लियर करो।
तो बी बोलता है ठीक है मुझे तो पैसे से मतलब है, तुम दो या वो दे, बात क्लियर। तो ये थर्ड पार्टी पेमेंट हो गई। नेक्स्ट प्रॉमिसरी एस्टॉपल पढ़िए। The principle of the promises estoppel may prevent five from retracting their promise with retrospective effect. अच्छा, अब ये क्या है प्रॉमिसरी एस्टॉपल? इसका पूरा टॉपिक है जिसको हम अभी समझेंगे। पढ़िए प्रॉमिसरी एस्टॉपल। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल वर्क्स एज फॉलोज। If the creditor makes a promise unsupported by consideration to the debtor X that Y will not insist on the full discharge of the debt, and the promise is made with the intention that X should act on it and they do so, Y is stopped from retracting their promise unless X can be restored to their original possession. अब क्या है? क्रेडिटर वाई मेक्स अ प्रॉमिस टू द डेटर दैट वाई विल नॉट इंसिस्ट ऑन फुल डिस्चार्ज ऑफ द डेट। वाई ने पैसे उधार दिए मैं एक्स को 100 पाउंड। तो अब वाई कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमको जबरदस्ती नहीं करूंगा या प्रेशर नहीं डालूंगा कि मुझे 100 पाउंड दे दो दे दो दे दो। एंड द प्रॉमिस इज मेड विद द इंटेंशन दैट एक्स शुड एक्ट ऑन इट एंड दे डू सो। लेकिन वही बात है, वो प्रॉमिस इसी बात पे करते हैं कि एक्स जो है, जो उसका वादा था कि मैं ये बिजनेस में लगाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, तो वो उसको करना चाहिए, वो उस पे पाबंद होना चाहिए। अगर वो उस पे पाबंद नहीं है तो वाई इज स्टॉप्ड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग द प्रॉमिस। यानी वाई को फिर रोका जाएगा कि बेटा तुम भी अपना प्रॉमिस तोड़ दो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसको लेवरेज देने की, अनलेस एक्स कैन बी रिस्टोर टू द ओरिजिनल पोजिशन। या तो एक्स वापस से अपना वो काम पे लग जाए जो वो कर रहा था, नहीं तो वाई को हम रोक देंगे कि भाई आप अपने प्रॉमिस को रिट्रैक्ट करें, आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल ना करें, आप पीछे ले जाए। ठीक है, दैट इज प्रॉमिसरी एस्टॉपल वेयर वी आर स्टॉपिंग वन पार्टी फ्रॉम फुलफिलिंग द प्रॉमिस। And usually the government interferes or the court interferes in this. Okay, now what else? Okay, this is the example case. Please read. In September, In September 1939, the claimant let a block of flat to the defendant at an annual rent of £2,500 per annum. It was difficult to let the individual flats in wartime, so in January 1940, the claimant agreed in writing to accept a reduced rent of £1 to £1,250 per annum. Note: no consideration passed from the defendant in return for the reduced rent. There were no time limits set on the arrangement, but it was clearly related to the wartime condition. The reduced rent was paid from 1940 to 45, and the defendant sublet flats during that period on the basis of the expected liability to pay rent under the head lease at £1,250 only. In 1945, the flats were fully let. The claimant demanded a full rent £2,500 per annum, both retrospectively and for the future. Decision: the agreement of January 1940 ceased to operate early in the 1945. The claimant for full rent after the war was upheld. However, the 1940 agreement had stopped any claim for the period 1940 to 45. अच्छा अब इसमें कहानी क्या समझ आई है? कि वॉर के टाइम पे उसने ना, वॉर से पहले उसका रेंट था 2,500 पर एनम, और वॉर में उसने घर जब नहीं बिक रहे थे तो उसने 1,200 पाउंड पर जो है ना उसने घर बेच दिए, लगा दिए रेंट पर। बिल्कुल। और फिर जो है ना जब वॉर एंड हुई तो फिर उसने अपना वापस बढ़ाना चाहा 2,500 पर एनम पर। अच्छा, फिर बढ़ाना ही नहीं चाहा, उसने ये करना चाहा कि जो 1940 से 1945 तक तुम लोग रहे हो ना इस घर में कम रेंट पे, तुम लोग उसका भी बकाया जो है वो दो। यानी उस वक्त तो तुमने सिर्फ 1250 दिए थे, तो अब जो बकाया है वो पूरा करो, यानी 2500 के हिसाब से। तो यहाँ पे कोर्ट बीच में इंटरफियर की और कोर्ट ने कहा नो, कोर्ट ने उसको स्टॉप किया कि तुम 1940 से 1945 का क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता 1945 के बाद तुमने जो 2500 बोल दिया है तो बस उसके बाद वो 2500 तो देने हैं बंदे को, बट जो ऑलरेडी वो दे चुका है 1940 से 1945 तक, उस पे आप दोबारा से कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? दैट इज promissory estoppel when court or state intervenes and stops someone from doing a particular act.
Next. Intention to create legal relations. We both know that if the parties are not willing to enter into legal relations, they won't form a very formal contract. Even if they do, they won't take it to the court, they would settle the matter outside the court. But if the parties, with mutual understanding, agree to enter into a contract which is legally binding, then in case of any breach of contract, any breach of any condition terms, then in that scenario, the victim party will go and sue the court, in the court against the defendant. Please read from here where there is. Where there is no express statement as to whether or not legal relations are intended, the court apply one of two reputable presumptions to a case. Rebuttable presumptions, rebuttable presumptions which cannot be taken back or which cannot be reversed, rebuttable presumptions. So if it is not stated very clearly that whether both the parties intended to create a legal relation or not, then these two rebuttable presumptions will be taken into account. Number one, social, domestic, and family arrangements are not usually intended to be binding, whereas commercial agreements are usually intended by the parties involved to be binding. दैट मीन दो भाइयों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मियाँ बीवी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दो बहनों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में, दो फैमिलीज के बीच में, तो वो यूजुअली क्या है, नॉट यूजुअली इंटेंडेड टू बी बाइंडिंग, वेरएज कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो डेफिनेटली इज लीगली बाइंडिंग. ठीक होगी कहानी. Rebuttable का क्या मतलब है? Means that the presumption can in some cases be refuted. The burden of proof for rebutting the presumption is on the party seeking to escape liability. Rebuttable का मतलब है, और देखो हर लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है. तो यहाँ पे लॉ क्या है कि भाई भाई आपस में लीगली बाइंडिंग नहीं कर रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट, मियाँ बीवी आपस में लीगली बाइंडिंग नहीं कर रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये तो रूल ऑफ लॉ हो गया. बट इसका एक्सेप्शन क्या है? जरूरी नहीं कि हर मियाँ बीवी ऐसा चाहे, जरूरी नहीं कि हर भाई भाई ऐसा चाहे. तो इट इज रिबटेबल, इट इज रिफ्यूटेबल, इट इज रिवर्सिबल. ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले सकता है. बात समझ आ गई? जी. आगे बढ़ रहे हैं. डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स हस्बैंड एंड वाइफ, जरा पढ़िएगा. बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर 1919. In fact, the defendant was employed in Ceylon. He and his wife returned to the UK on leave, but it was agreed that for health reasons she would not return to the Ceylon with him. He promised to pay her £30 a month as maintenance. Later, the marriage ended in divorce, and wife sued for monthly allowance, which the husband no longer paid. Decision and formal agreement of indefinite duration made between husband and wife whose marriage has not at the time broken up was not intended to be legally binding. ठीक हो गई कहानी. I think this is fairly straightforward. Merit versus Merit 1970. The facts. The husband had left the matrimonial home, which was owned in the joint names of husband and wife, to live with another woman. The spouses met and held a decision, in the course of which he agreed to pay her £40 a month, out of which she agreed to keep up the mortgage payment. The wife made the husband sign a note of these terms and an undertaking to transfer the house into her name when the mortgage has been paid off. The wife paid off the mortgage, but the husband refused to transfer the house to her. In the circumstances, an intention to create a legal relation was to be inferred, and the wife could sue for breach of contract. अब इस सिनेरियो में it becomes legally binding, the contract. Yes or no? हालांकि इस सिचुएशन में it's not legally binding. Yes. Next. Other domestic arrangements, again, some cases are there in which they are saying that usually it's not binding, but commercial agreements are legally binding. Rose and Frank versus Crompton, 1923. Please read. In effect, a commercial agreement by which the defendants appointed the claimant to be its distributor in the US contained a clause described as the Honorable Pledge Clause, which expressly states that
stated that the arrangement was not subject to legal jurisdictions in either country. The defendant terminated the agreement without giving a notice as required and refused to deliver goods ordered by the claimant, although they had accepted these orders when placed. Decision: the general agreement was not legally binding as there was no obligation to stand by any clause in it. However, the orders for goods were separate and binding contract. The claim for damages for breach of the agreement failed, but the claim for damages for non-delivery of good ordered succeeded. ठीक है, क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स वो सक्सीड हो गया, एंड क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेसली प्लेज में लिखा था कि नॉट सब्जेक्ट टू लीगल ज्यूरिसडिक्शन इन एनी ऑफ द कंट्रीज। तो ये ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है, टर्म्स एंड कंडीशंस पर देखना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, एविडेंसेस चाहिए होते हैं कोर्ट को। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़े। Procedural agreements between employer and trade unions for the settlement of disputes are not intended to give rise to legal relations in spite of their elaborate content under the Trade Unions and Labor Relations Consolidated Act 1992. क्या कह रहे हैं? अगेन जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स, दे आर मेंट टू बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट थ्रू अ ट्रिब्यूनल, राइट? एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, लेटर Employment ट्राइब्यूनल भी तो कोर्ट है। अच्छा, वो ट्रिब्यूनल भी कोर्ट है, बात सही है आपकी, बट इट्स नॉट दैट फॉर्मल कोर्ट। आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो जाता है एक तरह से। यूजुअली आउटसाइड द कोर्ट ही ये लोग सेटल करना पसंद करते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको पता है कि ब्रांड का गुडविल होता है, कितनी मेहनत से बनता है, एंड देन रातों रात लाइमलाइट में आके किसी भी एक स्टूपिड एम्प्लॉय की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट, लेटर्स ऑफ कंफर्ट। for फॉर मेनी इयर्स For many years, holding companies have given letter of comfort to creditor of subsidiaries which purport to give some comfort as to the ability of the subsidiary to pay its debts. Such a letter have always been presumed in the past not to be legally binding. ऑलराइट, अब इसमें ये केस है, बाप है, बेटा है, ठीक है? अब ये बाप है, फादर है बेटा से। अब सन ने लोन लिया है मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स इस फादर के बड़े अच्छे दोस्त। सन ने अंकल से लोन ले लिया, कितने का? 10 मिलियन। अब मिस्टर एक्स ने कहा कि 6 महीने में लौटा देना। बच्चे ने भी कहा हाँ मैं लौटा दूंगा, मगर लौटाया नहीं। उसने फिर शिकायत की अब्बा से, भाई ये देखो तुम्हारा बेटा बोला क्या था और किया क्या, वापस नहीं कर रहा पैसे, समझा दो अपने बेटे को। तो बाप कह रहे हैं कि हाँ तसल्ली रखो, डोंट वरी, मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, वो दे देगा, तुम फिक्र नहीं करो, उसको 6 महीने का और वक्त दे दो, वो तुम्हारे सारे पैसे चुका देगा। तो क्या हुआ? फादर ने इस अंकल को लेटर ऑफ कंफर्ट दिया, तसल्ली दी कि तुम्हारे पैसे कहीं नहीं डूब रहे, कहीं नहीं जा रहे, मैं हूं ना, तुम उसको थोड़ा सा मौका दो। इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक होती है पेरेंट कंपनी, और पेरेंट की होती हैं छोटी छोटी सब्सिडियरीज। और किसी सब्सिडियरी ने अगर बैंक से लोन लिया हुआ है और वो बैंक को नहीं वापस लौटा पा रहे, तो बैंक परेशान हो जाता है। तो पेरेंट एक ईमेल करता है बैंक को, जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ कंफर्ट, कि ये मेरी सब्सिडियरी है, इसने आपसे फलां तारीख को लोन लिया है, मैं समझ सकता हूँ उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं किए, मगर आप बात को समझिए और थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, आप हम पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह आपको सारे पैसे आपके दे देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं तो आपको क्या लगता है कि बैंक क्या चुप बैठेगा? वो क्या फौरन कोर्ट नहीं जाएगा उसको करने? अब अगर ये कोर्ट चला गया तो बदनामी तो पेरेंट कंपनी की होगी ना, सब्सिडियरी तो पेरेंट की है। तो इसलिए इसको ठंडा करने के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट। बात समझ आई? नेक्स्ट, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। अब अगर ये लेटर ऑफ कंफर्ट जो है इसने कोर्ट को दिया, और उसके बावजूद पेरेंट ने लेटर ऑफ कंफर्ट कोर्ट को दिया और उसके बावजूद 1 साल में भी सब्सिडरी नहीं चुका सकी, तो बैंक फिर कोर्ट में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा। लेकिन बैंक फिर पी को सू नहीं कर सकता, वो सब्सिडरी को ही सू करेगा कि उसने डेट नहीं दिया।
वो पी को नहीं सू कर सकता कि इसने तो मुझे लेटर ऑफ कंफर्ट भेजा था, इसने तो मुझे तसल्ली दी थी, इसकी वजह से हुआ। ऐसे नहीं हो सकता। यानी कि अंकल फादर को जेल में नहीं डलवा सकते, अंकल जो है बेटे को जेल में डलवा सकते हैं, क्योंकि बेटे ने लोन लिए, फादर ने तो उसे तसल्ली दी है। तसल्ली देना कोई गुनाह तो नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। That's what they're saying, that such letters have always been presumed in the past not to be legally binding. Next, transactions binding by honor only. If the parties state that an agreement is binding in honor only, this amount to an express denial of the intention to create legal relations. क्या कह रहे हैं? If parties state that an agreement is binding in honor only, यानी कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग इन ऑनर का क्या मतलब है? भाई जबान दी है ना, मेरी जबान की एक वैल्यू है, जबान दे दी तो दे दी भाई ने, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं करके रहूंगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट। उसमें बीच में कोर्ट को लाने की, लीगल मामलात को लाने की जरूरत नहीं है। लीगली बाइंडिंग तो उनको करते हैं, उनको बांधते हैं लीगली जिन जिन लोगों ने धोखा देना होता है। हम धोखा देने वाले थोड़ी हैं। तो ए और बी आपस में दोनों की बातचीत हुई और दोनों ने एक ऐसी ट्रांजैक्शन की जो बाइंडिंग इन ऑनर ओनली था। प्लीज रीड द केस जोन्स वर्सेस वर्नॉन स्कूल्स 1938। The claimant argued that he had sent to the defendant a football Poll's coupon on which his prediction entitled him to a dividend. The defendant denied having received the coupons. A clause on the coupon stated that the transaction should not give rise to any legal relationship but be binding in the honor of the decision. This clause was a bar to an action in court. This clause was a bar to an action in court. Why? Because वो transaction तो सिर्फ और सिर्फ honor by honor ही bound थी, did not give rise to any legal relationship. Next, privity of contract. The general rule only a person who is a party to a contract has enforceable right or obligation under it. This is the doctrine of privity of contract. The Contract Right of Third Party Act 1999 has had a fundamental effect on the doctrine. अब यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, ठीक है। तो जनरल रूल ऑफ लॉ क्या है कि सी इज नो बडी टू कम एंड सू ए। सी हैज नो राइट टू कम एंड सू ए फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बिटवीन ए एंड बी। तो ये कह रहे हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये डॉक्ट्रिन है, ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि इन केस सी इज अ वेरी क्लोज रिलेटिव टू द बी, यानी कि बी और ए का कॉन्ट्रैक्ट था, बी का एक्सीडेंट हो गया, बी मर गया, बी का एक्सीडेंट हो गया, बी मर गया, उसने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर लिया था। अब बस ए की बारी थी कि वो पेमेंट इशू कर देता। तो अब बी की जो वाइफ है, वाइफ वो कोर्ट में जाके इसको सू करती है कि भैया पैसे दो। अगर ये नहीं देता पैसे तो वाइफ कोर्ट में सू कर देगी। तो इस सिनेरियो में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द केस। एंड यहाँ पे चूंकि ये इसका बहुत क्लोज रिलेटिव है और ये सिचुएशन में इसने अपना फुलफिल कर लिया है ड्यूटी, तो इसलिए वो जाके सू कर सकते हैं। बात समझ आई? That is privity of contract. General rule, only a person who is party to a contract has enforceable rights or obligations under it. Third parties have no right of action in certain exceptional instances. And वो certain exceptional instances मैंने आपको बता दिए। Exceptions. Number 1. The third party can sue in another capacity. Bestwick versus Bestwick पढ़िए। The fact X transferred his business to the defendant, his nephew, in consideration for a pension of pound 6.10 per week, and after his death, a weekly annuity to X's widow. Only one such annuity payment was made. The widow brought an action against the nephew, asking for an order of specific performances. She sued both in administration
of X, administration of X, of her X. Administratrix of husband's Administratrix. estate. That And means in the her person who was responsible to, sell off all husband's assets. So decision decision, क्या आया? as her husband's representative, the widow was successful in enforcing the contract for a third party, her own benefit. In her personal capacity, she has no right of action. Next, कोलैटरल Collateral. कॉन्ट्रैक्ट. ये हमने पढ़ा था ना, कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? ए बी सी, या इसको हम ले लें ISA, ट्यूटर्स, स्टूडेंट्स. ISA का कॉन्ट्रैक्ट इनसे, ISA का कॉन्ट्रैक्ट इनसे, लेकिन आपस में इन दोनों का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. मगर क्या स्टूडेंट सू कर सकता है ट्यूटर को? यस, सू कर सकते हैं. दैट्स अ कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, वैलिड असाइनमेंट पढ़िए. Benefit from a contract can be reassigned from the original beneficiary to a third party if it is in writing. It transfers the same or no more benefits to the new beneficiary and has the consent of the other party. Valid assignment. Benefit from a contract can be reassigned from the original beneficiary to a third party if it is in writing. तो यानी कि अब क्या हो रहा है, पहले ए का कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ था, मगर बी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ए ने शिफ्ट कर दिया, सेम कॉन्ट्रैक्ट सी को दे दिया. तो अब ए और सी कॉन्ट्रैक्ट में हो गए, बी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्सिएबल लॉस टू द थर्ड पार्टी. Proof defects. पढ़िए. Lender and partner contracted with the defendant for work to be done on their property. The defendant knew there was the likelihood that the property would be transferred to a third party soon after. After the transfer, it became apparent that the workmanship amounted to a breach of contract. As the third party had no action against the defendant due to their rules of privacy, Linden Gardens took action in their place. Decision as the transfer was in the contemplation of both parties, the original beneficiary could claim full damages on behalf of the third party. अच्छा, अब देखो, एक बंदा ये है, एक बंदा ये, एक बंदा ये. ठीक है. इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में इसको साफ साफ ये बात नजर आ रही है कि ये दोनों जो काम करने जा रहे हैं उससे नुकसान होगा, उससे लॉस होगा. पब्लिक को लॉस होगा, एनवायरनमेंट को लॉस होगा, किसी भी XYZ चीज को लॉस होगा. और इन लोग को भी अच्छे से आइडिया है कि हाँ, दिस इज अ रिस्की जॉब, नुकसान हो सकता है. तो जब जब लॉस या रिस्क दोनों पार्टीज की कंटेम्पलेशन में है, यानी एक आइडिया है उनको कि दे आर गोइंग इनटू अ डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट, सो द ओरिजिनल बेनिफिशियरी कुड क्लेम फुल डैमेजेस ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी. यानी जिसको बेनिफिट पहुंचना था इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द थर्ड पार्टी जिसका नुकसान हुआ. अब वो नुकसान हो सकता है एनवायरनमेंट का हो, एनवायरनमेंट खुद तो जाके कोर्ट में सू नहीं करेगी ना, तो एनवायरनमेंट को कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा, NGO रिप्रेजेंट करेगा या कोई बंदा रिप्रेजेंट करेगा, और वो जाके सू करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी का नुकसान और किसी का फायदा हुआ. दैट इज फोर्सिएबल लॉस टू द थर्ड पार्टी. उस केस में थर्ड पार्टी जाके सू कर सकती है. अदरवाइज प्रिविटी ऑफ लॉ क्या कहती है तहरीन, कि थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं जिसका कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिस्सा नहीं. बात समझ आई? Implied trust. Equity may hold that an implied trust has been created. P owed money to G and W. He agreed with W to transfer his property to W if W would pay his P's debt to G. The property was transferred, but W refused to pay G. G would not sue on the contract between P and W. P could be regarded as a trustee for G, and G could therefore bring an action jointly with P. Implied trust यानी कि आपने किसी को जिम्मेदार ठहराया है किसी चीज के लिए, और फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर सक्सेसफुल नहीं होता, तो आप उसको भी शामिल करोगे कि भाई आपके भरोसे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपके ही बोलने पर हमने उस बंदे पे उस शख्स पे भरोसा किया था, अब आप ही हमारा नुकसान भरो. दैट इज पॉसिबल. स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस स्टेट अ पर्सन इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट में क्लेम अगेंस्ट द मोटरिस्ट इंश्योरर्स. ठीक है. अब क्या है, ये ड्राइवर है, ये बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया, और एक है इंश्योरेंस वाली कंपनी.
अब कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? इंश्योरेंस कंपनी के और ड्राइवर के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है, बट सू कौन कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को? थर्ड पार्टी। क्यों? क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। रोड ट्रैफिक एक्ट के मुताबिक अ पर्सन इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट में क्लेम अगेंस्ट द मोटर इंश्योरेंस। ठीक है, कानून इजाजत देता है, तो जब कानून इजाजत देता है तो प्रिविटी ऑफ लॉ झक मारने चली गई। नेक्स्ट, एजेंसी। एजेंसी में भी यही होता है कि दो पार्टीज हैं, ए और बी, और दोनों को आपस में किसने मिलवाया है? एजेंट ने मिलवाया है, विच इज सी। तो अगर एजेंट ने मिलवाया है और एजेंट का तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेना देना ही नहीं है, तो क्या फिर एजेंट को कोई सू कर सकता है? तो पता चला हाँ, सू कर सकता है अगर एजेंट ने जानबूझकर ए और बी से चीजें छुपाई हो, या जानबूझकर एक गलत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया हो, या जानबूझकर किसी को ब्रीच करने में मोटिवेट कर रहा हो, तो इस तरह की कोई भी चीज हो तो फिर हो सकता है। और एजेंसी भी इन दोनों में से किसी को भी सू कर सकती है अगर इन दोनों में से किसी ने इसको कमीशन नहीं दिया हो, इसका जो जायज हक है, ठीक है, मिसगाइड किया हो, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, कवेनेंट्स। और रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट में रन विथ लैंड, जमीन के कागजात, उसमें अगर गड़बड़ हो तो कोई तीसरा बंदा भी आके सू कर सकता है। ये अक्सर होता है कि गवर्नमेंट और कोई इंडिविजुअल दोनों आपस में सौदा कर लेते हैं एक जमीन का, पता चलता है वो तो किसी किसान की थी जमीन, तो बेचारा किसान पिस जाता है, तो किसान कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन पे हड़प कर ली है, गबन कर ली है। तो इस केस में हालांकि फार्मर का किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस केस में फार्मर क्या कर सकते हैं? सू कर सकते हैं। ठीक है, जी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स ऑफ थर्ड पार्टीज एक्ट 1999, पढ़िए। The Contract Rights of the Third Party Act 1999 has a fundamental effect on the rule of privacy of contract by setting out the circumstances in which a third party has a right to enforce a contract terms or have it varied or rescinded, and a right to all the remedies that are available for breach of contract. There is a two-limbed test for circumstances in which a third party may enforce a contract term. नंबर वन, Whether the whether the contract itself expressly so provides, where the term confer a benefit on the third party unless it appears that the contracting parties did not intend them to have the right to enforce it. ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में खुद ये बात लिखी हुई हो, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी को वाकई में कोई बेनिफिट या कोई हार्म पहुंचा हो, तब तो वो कर सकता है। ठीक है, द थर्ड पार्टी मस्ट बी एक्सप्रेसली आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बाय नेम, क्लास और डिस्क्रिप्शन। द एक्ट आल्सो प्रोटेक्ट्स थर्ड पार्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल पार्टीज वेरिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स विदाउट देयर कंसेंट, एंड द प्रोमिसर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डबल लायबिलिटी। तो ये सारी चीजें स्टेट जो है प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, भैया ये तो हम आपसे ज्यादा बेहतर और कौन जान सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हम रोज कर रहे होते हैं, कभी हम ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे होते हैं, कभी हम ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं, तो वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ईमेल के जरिए साइन कर रहे हो, डिजिटली साइन कर रहे हो, या बाय फैक्स इशू हो रहा हो, तो ये सारी चीजें फिर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में आ जाती है। ठीक है जी, बाकी सब इट्स जस्ट अ प्लेन रीड, नथिंग मच। So we have completed this chapter. Any point that is unclear? नहीं, clear है. जी, Clear है. clear है? Okay, then come to the quick quiz. Second wala. True. Next, consideration need not be dash, but it must be dash. Yes, sufficient and adequate. पहले क्या आएगा? Sufficient आएगा? नहीं, पहले एडुकेट आएगा, मेरे ख्याल से फिर सफिशिएंट आएगा. Next, Alice promises Ben that for a consideration provided by Ben, Alice will confer a benefit on Charlotte. Then dash cannot at common law enforce Alice's promise. This is the doctrine of
नहीं समझ आ रहा। ओके, ये वाला बता दे। हाँ, ट्रू। yes. Okay. So the first one is true. Second is adequate and sufficient. Fourth is Charlotte, and the fifth is privity contract. Privity of contract. Next is true. यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लॉ के मुताबिक शार्लेट सू नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान है? एलिस और बेन के दरमियान। थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, सही। ठीक है, ओके। राइट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आना, थोड़ा बहुत ओवरव्यू करके आना, ताकि हम इसको जल्दी से खत्म करें। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हम डिस्कशन में ला चुके हैं। कुछ एक आधा चीजें जैसे इसको हमें समझना है सही से और इसको समझना है, बाकी सब तो जनरलाइज चीजें। ठीक है, कोई सवाल यहाँ ठीक है। तक तेरी? नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।